Hello friends, कैसे हो? So as promised, I am uploading the demo lectures of class 11th bookkeeping and accountancy. This is the book of 11th standard which is being rightly available in any store. So as I promised, I'll be teaching this 11th standard accounts from very basics. So first topic is introduction to bookkeeping and accountancy. So we are going to learn one by one what is this bookkeeping, what is accountancy. First of all, why this bookkeeping and accountancy is used, why these books are maintained, to whom these books of accounts are useful, everything. We are going to learn each and everything from this book. So we'll be starting from the definitions to all these concepts. So to start with, it says meaning and definition. What is the meaning of bookkeeping? Meaning, it says bookkeeping means recording of business transactions in the books of accounts in a systematic way. क्या करते हैं हम? सारे ट्रांजैक्शंस को बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक वे में लिखते हैं. वाई डू वी मेंटेन दिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? सो अभी सारे जो भी एक्सपेंसेस हो गए, खर्चे हो गए, असेट्स खरीदेंगे, P&L एक्सपेंसेस हो गए, वॉट एवर गुड्स वी परचेज, व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक, व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक, then all for recording all the monetary transaction. How do we record this? We record this date wise for accurate business results. हम लोगों को पता करना है कि what exactly is going on into the business, what is the profit, then is the business profitable, then should we continue the business or not continue the business. Such records at the end of the accounting period for accurate business results for the end of the accounting period. बुककीपिंग को क्या बोलते हैं? इट इज आर्ट और साइंस ऑफ सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग. व्हाट डू वी डू? सिस्टमैटिकली. ऐसा नहीं कि कुछ भी परचेस किया, कोई पेपर पे लिख दिया, देन कोई असेट खरीदा, रिटन समवेयर, दिस इज नॉट अवेलेबल इन द सिस्टम. नो, ऑल दिस ट्रांजैक्शंस आर बीइंग सिस्टमैटिकली रिकॉर्डेड. क्लासिफाइंग. क्लासिफाइंग का क्या मतलब है? whether this is a expense or this is a income, whether this is a asset or this is a liability. क्या करते हैं? इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं. Where this expense or income would go, this would go in trading account or P&L account, or this item will go in balance sheet. So this is called as classifying. के बाद summarize करना. कहाँ पर summarize होता है इसका? बैलेंस शीट जो बनता है, जो P&L अकाउंट बनता है, जो प्रॉफिट निकलता है, दिस इज कॉल्ड एज समरी ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. ये ऐसा नहीं होता कि कभी भी 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए बनाते हैं. नो, दिस इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, एंड दैट इज, वो जनरली कितने साल के लिए होता है? 1 साल का पीरियड होता है. वी डू नॉट टेंड टू मेक, चलो 3 साल का बिजनेस है, 3 साल का एक साथ बुक्स बना लेंगे, 3 साल का एक साथ डेटा पुट कर देंगे. नो, दिस इज प्रिपेयर्ड फॉर अ फाइनेंशियल ईयर एंड दैट इज 1 ईयर, राइट. तो एग्जाम में आपको क्या करना है? if any theory question is asked about any question, then what you have to do is, first of all, write down the definition as given in the books of accounts, and exact definition is to be written in the paper so as to get the full marks. So वहाँ पे क्या बोलते हैं? There are multiple definitions given. So these are the definitions of bookkeeping. Bookkeeping को क्या बोलते हैं वो? Richard E. Stralham, what this person is telling, art of analyzing, recording business transactions, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा. उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन थ्रू पीरियोडिक स्टेटमेंट्स. क्या करते हैं हम? एनालाइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, सिस्टमैटिकली इस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, थ्रू पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स. और ये स्टेटमेंट्स क्या क्या होते हैं? दिस स्टेटमेंट्स आर P&L अकाउंट, दिस स्टेटमेंट्स आर बैलेंस शीट, और भी बहुत सारी चीजें बनते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सारी चीजें बनती है, राइट. सो यहाँ से क्या पता चलता है? द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. एंड व्हाट डू वी नेक्स्ट डू देन? वी इंटरप्रेट सच रिजल्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ फ्यूचर ऑपरेशंस. फिर ये सारा जो भी इंफॉर्मेशन हमको बनता है, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इससे क्या करते हैं हम? फ्यूचर पर्पसेस के लिए इसको यूज करते हैं कि कैसा कंट्रोल होना चाहिए, इज दिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओके, और इससे और ज्यादा और इफेक्टिव कंट्रोल करना पड़ेगा. J.R. Bartley Boy, you have to write the, you know, the author's name who have written the definition. You have, then only you would get whole marks. So keep in mind, you have to write 2 definitions, or you can write 1 definition also. So write a very crisp definition. Maybe first definition is okay. पहला डेफिनेशन थोड़ा सा डिटेल में है, सो अच्छा लगता है अगर पेपर में आप ऐसा डेफिनेशन प्रेजेंट करते हो तो. There is no harm in writing the other definitions also.
So what does this say, Bartley boy? Bookkeeping is an art of recording business dealings in a set of books. कि हम लोग अलग अलग सेट ऑफ बुक्स में इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. सिंपल डेफिनेशन, दैट्स इट. नॉट कॉट क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग तो सब में डाला है, राइट? दिस इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. बट ये क्या बोलते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? कौन से एस्पेक्ट्स को कवर किया है? मॉनेटरी एस्पेक्ट्स. मतलब मॉनेटरी मतलब ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग मनी, है ना? ऐसे वाले ट्रांजैक्शंस को हम कहाँ कवर करते हैं? हमारे बुक्स में. दे हैव सेड दैट मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सारे जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे, इन्वेस्टमेंट्स मेड, असेट्स परचेज, योर एक्सपेंसेस, योर प्रीपेड एक्सपेंसेस, योर outstanding expenses or whatever it is, all this is called as financial transactions. R.N. Carter, he says bookkeeping is a science and art of correctly recording. Science and art, हमने देखा है art तो हर जगह आया है. This is the art of recording transactions in the books of accounts. कौन से transactions है? Specifically कौन से transactions के बारे में बात करी है? Transactions, business transactions that results in the transfer of money or money is worth. जहां पर मनी और मनी इज वर्थ आ गया, वैसे वाले पूरे ट्रांजैक्शंस को हम क्या करेंगे? वी विल बी रिकॉर्डिंग ऑल दिस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. सो दीज आर ऑल द डेफिनेशंस गिवन इन योर बुक. सो यू कैन चूज एनी वन. बहुत अच्छी डेफिनेशन. सो आई विल रिकमेंड टू ये वाला डेफिनेशन आप लिखो. नहीं तो यू कैन चूज टू राइट 2 definitions विद द नेम ऑफ द ऑथर, राइट? सो मूविंग ऑन टू व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग. इसके क्या क्या फीचर्स है? मतलब जैसे हमारे फीचर्स होते हैं ना, नाक, आँख, कान, तो बेसिक फीचर्स क्या क्या है अकाउंट्स के, वैसे वो क्या बोलते हैं? डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का जरिया. दिस इज कॉल्ड एज बुक कीपिंग. ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ऐसा नहीं कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे. नो, इफ यू से दैट ओके बिजनेस के दौरान कुछ लोगों ने मीटिंग में आकर मीटिंग में बैठ गए, इसको मैं लिखूंगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखूंगा. हाउ डू यू राइट दिस इन बुक्स ऑफ अकाउंट? सो वो बोलते हैं कि ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विल बी रिटन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. और ये जो सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये किस चीज के लिए होते हैं? दिस इज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक पीरियड, प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड विच आर यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंस. एक स्पेसिफिक पीरियड दैट इज 1 year. हमने अभी देखा ऊपर, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर 1 year. It is prepared for 1 year. The records of transactions are based on some rules and regulations. So आगे हम वो पढ़ने वाले हैं in the coming topics that what are these rules and regulations, कैसे इसको हम present करते हैं, what is real, nominal, personal accounts, ये rules है इन सब के. तो ऐसा नहीं है कि any transactions होके आ गया, इसको मैं बैलेंस शीट में डाल दूँ, डायरेक्ट P&L में डाल दूँ. No. So there are certain rules and regulations which you have to follow while recording these transactions in the books of accounts. It is an art of recording business transaction scientifically. ऐसा हमने ऊपर अभी भी डिस्कस किया था कि it is a systematic record of transaction. So these are called as features of bookkeeping. Day-to-day transactions, financial information, specific period. It is based on certain rules and regulations, and transactions are recorded scientifically. Without leaving anything, we are going to study everything from the book. Then what are the objectives of bookkeeping? ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों मेंटेन करते हैं, क्यों बनाना जरूरी है बुक्स ऑफ अकाउंट? इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? कोई तो चीज का ऑब्जेक्ट होता है ना. अगर हम लोग कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट. वैसे ही बुक कीपिंग जब पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये बुक कीपिंग मेंटेन करने का? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेज टू keep a complete and accurate record of all the financial transactions in a systematic, orderly and logical manner. बार बार एक ही चीज को रिपीट किया है, बट देन यस यू कैन रिमेंबर दिस क्रिस्पली. एक ही चीज है इसका, रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली. फिर क्या होता है? कैसे भी नहीं होता है. सपोज यू परचेज समथिंग ऑन day 1, देन day 2 यू सेल समथिंग, देन day 3 कुछ एक्सपेंस हुआ, तो ये क्या होता है? सारे जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, इट इज मेंटेन्ड डेट वाइज. इट इज मेंटेन्ड डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज. डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज. तो अकाउंट वाइज मतलब सपोज एक्स को सेल किया, वाई को सेल किया, ए से परचेस किया, बी से परचेस किया, तो ये अकाउंट वाइज सारे डिटेल्स को मेंटेन किया जाता है. व्हाट? डेट वाइज. डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज. सो वाइज यू कैन रिमेंबर, राइट? दूसरा वो क्या बोलते हैं? इट इज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ व्हाट? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. और ये किसके लिए हम रिकॉर्ड करते हैं? बिगेस्ट रीजन इज टू प्रोड्यूस एज एन एविडेंस. सपोज कोर्ट में कुछ झमेला हो गया, इट इज
यू प्रोड्यूस्ड एज एन एविडेंस, राइट? कि अगर गवर्नमेंट कभी भी उठकर बोलती है कि दिस इज समथिंग रॉन्ग, ये कुछ तो गलत है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्रोड्यूस दिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज अ एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ व्हेनेवर एंड वेरेवर रिक्वायर्ड। कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो आपके पास इसका रिकॉर्ड मेंटेन होना जरूरी है। बेसिक चीज क्यों बनाते हैं इसको? प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है बिजनेस का, है ना, फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का हमको प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है, तो यू कैन शॉर्टली राइट दैट पी एंड एल। प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है। पी एंड एल के बाद टू नो द टोटल असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ एंटरप्राइज, तो शॉर्ट में यू कैन राइट डाउन एज असेट्स एंड लाइबिलिटीज। पी एंड एल, असेट्स, लाइबिलिटीज, फिर एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन, डेट वाइज, अकाउंट वाइज। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको किससे कितना पैसा लेना है, आपको कब किसको कितना पैसा देना है ना? टू नो व्हाट द बिजनेसमैन ओज टू अदर्स एंड व्हाट अदर्स ओ टू हिम, मतलब मुझे कितना सामने वाले को देना है और सामने वाले से मुझे कितना लेना है। टू नो दिस अकाउंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल को आपसे कोई आ जाएगा खरीदने के लिए, यू गिव देम द गुड्स एंड देन टुमारो द पर्सन सेज नो आई डिडंट परचेज फ्रॉम यू, देन व्हाट डू यू डू? आपका बिजनेस ही चौपट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपके बुक्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। इसीलिए बोला है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, ये भी है उसका ऑब्जेक्टिव। क्यों? कि मुझे पता करना है कि मुझे कितना पे करना है और मुझे कितना रिसीव करना है। बिजनेसमैन जो भी बिजनेस कर रहा है उसको पता करना है कि मेरा जो करंट ईयर का प्रोग्रेस है वो प्रीवियस ईयर से कैसा है, उसको कंपेयर करना है। मेरा जो करंट ईयर का प्रोग्रेस है, आई हैव टू कंपेयर दिस विद द प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल रिजल्ट्स विद द अदर बिजनेस एंटरप्राइज इन सिमिलर लाइन। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2017-18, 2018-19, यहाँ का परफॉर्मेंस को ट्रैक करेंगे। यहाँ के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के बाद दिस शुड बी, ये अच्छा ही होना चाहिए परफॉर्मेंस। हम भी ऐसे ही करते हैं ना। फर्स्ट यूनिट टेस्ट, ओके आई गॉट 86%, एंड नेक्स्ट यूनिट टेस्ट आई शुड गेट 90%, तो प्रोग्रेस होना चाहिए पहले से। यस, सो दैट इज वाई वो बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करने के लिए व्हाट वी डू, वी प्रिपेयर द बुक कीपिंग ऑफ द अकाउंट्स। वहां पे दो लोग हैं, ये एक्स ये वाई, दिस इज ऑल्सो डूइंग द सेम बिजनेस, तो ये वाई से भी कंपेयर करेंगे हमारा बिजनेस। हाउ मच प्रॉफिट हैव अर्नड बाय वाई एंड हाउ मच प्रॉफिट हैव अर्नड बाय मी एज अ एक्स, तो हम लोग इसका भी कंपेयर करेंगे। सो व्हाट क्या बोला है? टू कंपेयर विद द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, और दूसरा टू कंपेयर विद द अदर बिजनेस एंटरप्राइज इन सिमिलर लाइन, मतलब जैसा सिमिलर बिजनेस अगर कोई करता है तो उससे भी कंपेयर करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट जो है हमको यूज में आते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। क्या क्या पढ़ा इसमें? कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस, वाइज रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज। देन व्हाट? परमानेंट रिकॉर्ड एज अ एविडेंस प्रूव करने के लिए। टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस, टू नो द असेट्स एंड लाइबिलिटीज, टू नो दैट हाउ मच द बिजनेस ओन्स टू अदर एंड हाउ मच द अदर पर्सन ओन्स टू मी, एंड लास्टली व्हाट इट सेज, नो द प्रोग्रेस। सो आई विल शॉर्टली राइट डाउन हियर एज प्रोग्रेस. So what you can also do is write down these short keywords. Next time it would be easy for you to remember all these sentences. अभी हमारा concept है importance of bookkeeping. Importance of bookkeeping. So इसमें number 1 point is record. रिकॉर्ड हमने इतने बार अभी सुन लिया है। रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड ऑफ व्हाट, तो वो क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। क्यों रिकॉर्ड करते हैं? बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल द ट्रांजैक्शंस, बिकॉज ये सारे ट्रांजैक्शंस याद नहीं रहते, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड समवेयर। सो वो समवेयर कहाँ रहता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो दैट इज कॉल्ड एज इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। सिस्टमैटिकली, दिस वर्ड शुड बी देयर, सिस्टमैटिकली, यह वर्ड आना ही चाहिए, और परमानेंटली।
परमानेंटली। ये सारे जो भी वर्ड्स है वो आपके आंसर में दिखने चाहिए। नंबर 2, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हमने देखा ना किस इंफॉर्मेशन के लिए। अच्छा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है अभी? टू नो प्रॉफिट और लॉस, टू नो assets, liabilities, सारे इन्वेस्टमेंट्स, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक, हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा है, इतनी पूरी और भी सारी इंफॉर्मेशन हम लोग क्या करेंगे एट एनी गिवन पॉइंट टू नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन। इसको क्या बोलते हैं हम? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नंबर 3, डिसीजन मेकिंग। क्या बोलते हैं? डिसीजन मेकिंग। अभी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से डिसीजन मेकिंग होता है क्या? व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स यस। अभी जो बिजनेसमैन होते हैं ना, ये जो भी बिजनेसमैन होते हैं, व्हाट दे डू, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से डिसीजन मेकिंग करते हैं। P&L कितना हुआ, फिर बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना चाहिए क्या, ओके प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहिए क्या, बिजनेस में और कौन से स्ट्रीम्स को हम ऐड कर सकते हैं, और असेट्स कितनी लगने वाली है, हमारा प्रोडक्शन कैसे चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो लेट्स बाय वन मोर मशीन, और वो मशीन का कॉस्ट कितना होगा, वो हमारे लिए फिजिबल है कि नहीं। ये सारे डिसीजंस बिजनेसमैन को कहाँ से मिलते हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमने अभी अभी देखा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मीन्स प्रॉफिट लॉस, असेट्स, लाइबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, राइट। नंबर 4, कंट्रोलिंग। It enables the executives of business to control. What control? क्या कंट्रोल करना बोलते हैं वो? All activities। बुक कीपिंग का सपोज बहुत सारा लॉस हो रहा है, प्रोडक्शन में ऐसा हो रहा है कि कोई फैक्ट्री में अगर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स है और बस सामान को ऐसा फेंका जा रहा है, बहुत लॉस हो रहा है, बहुत एक्सपेंस हो रहा है, तो उसको क्या करना पड़ता है फिर? दैट इज टू बी कंट्रोल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल बाय द एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। ऊपर सबसे होते हैं टॉप पर्सन्स, मतलब जो बॉसेस होते हैं, उसके बाद कौन आते हैं? एग्जीक्यूटिव्स। ये वाले जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ये क्या करते हैं? इनका कंट्रोलिंग करते हैं। और उसके नीचे आते हैं एम्प्लॉयज आते हैं, और एम्प्लॉयज के बाद वर्कर्स वगैरह जो भी होते हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज। ऊपर भी हमने पढ़ा ना, एक्ट एज अ एविडेंस। एविडेंस कहां पर? एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स। तो इट एक्ट्स एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स। वो हमने ऊपर भी पढ़ा। नंबर 6, इट सेज टैक्स लायबिलिटी। ये कुछ कॉन्सेप्ट होता है, पता है? टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, जब भी कोई बिजनेस ओपन करता है और सेल्स करता है तो उस सेल्स पर GST, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। थर्ड प्रॉपर्टी टैक्स। ये सारे टैक्स लायबिलिटीज डिस्चार्ज करने के लिए हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना बहुत 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 ज़रूरी है। तो दिस इज इट गाइस, दिस इज द importance of bookkeeping. Record financial information, decision making, controlling, evidence, and lastly tax liability. These are called as the importance of bookkeeping. These are called the importance of bookkeeping. These are also given in यहाँ पे record, not possible to remember all the transactions, therefore
permanently and systematically record. Financial information means profit and loss, assets, liabilities, investment, stock at any given time. Then decision making, कौन करेगा decision making? businessman करेगा decision making, ठीक है. फिर controlling कौन करेगा? enables the executive to control all the activities, ये भी हमने पढ़ा. Then evidence, it acts as a evidence produced court of law in case of any disputes. Lastly, tax liability, bookkeeping is useful to find out the tax liabilities of income tax, property tax, GST, etc. Okay, all these points are discussed now. Next question is utility of bookkeeping. यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग. अच्छा, ये यूटिलिटी मतलब ये किस किस को यूज आता है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन यूज करता है, तो उनके लिए इनकी यूटिलिटी सभी के लिए अलग अलग होगी. फॉर एग्जाम्पल, फॉर ओनर, जिसका ये बिजनेस है ना, जिसने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके लिए क्यों यूज, किस चीज के लिए यूजफुल आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, टू नो असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द एंटरप्राइज एट एनी गिवन पॉइंट. तो ये ओनर के लिए फर्स्ट पॉइंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओनर के लिए क्या. नेक्स्ट, मैनेजमेंट. मैनेजमेंट मतलब क्या? एक ओनर रहेगा, दूसरा मैनेजमेंट. ओनर ही थोड़ी काम करेगा सारा. तो जहाँ पे भी वो एग्जीक्यूटिव्स लोग और एम्प्लॉयज लोग रहेंगे, वो मैनेजमेंट के लिए क्या यूज आएगा? ये एक्टिविटीज का प्लान कैसा करना है, प्लानिंग, टेक डिसीजंस लेने पड़ेंगे ना मैनेजमेंट को, उसके लिए. और लास्टली कंट्रोल ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज. प्लानिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, और डिसीजन मेकिंग के बाद टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज. ये हमने ऊपर भी पॉइंट को डिस्कस किया था. थर्ड, इन्वेस्टर्स. कौन इन्वेस्टर्स मतलब कौन? अच्छा, रिलायंस, मुकेश अंबानी में क्या होता है? रिलायंस में खुद का पैसा है, मुकेश सर खुद पैसा देते हैं? नो, इट इज़ द मनी ऑफ ऑल द जनरल पब्लिक. तो ये कहाँ से आता है? शेयर्स, डिबेंचर्स, यहाँ से पैसा आता है. तो ये लोग कौन है? इन्वेस्टर्स. इनको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर्स. तो इन्वेस्टर्स ऐसे ही पैसा इन्वेस्ट कर देंगे क्या? ओके, ले लो पैसा, ले लो? नो, वो लोग क्या करेंगे? फाइनेंशियल्स पढ़ेंगे, उनका बुक्स देखेंगे. ओ ओके, कितना प्रॉफिट है, कितने असेट्स है, कितना कितना काम है, ये लोग हमको कितना पे करेंगे, क्योंकि शेयर्स पे तो डिविडेंड भी मिलता है. फिर शेयर प्राइस जब बढ़ती है तो हमको उसका प्रॉफिट भी हमको शेयर मिलता है. टू टेक प्रॉपर डिसीजंस कि इन्वेस्ट करना या नहीं करना, टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी. ये डिसीजन मेकिंग करने के लिए अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसके लिए काम आएंगे? ये यूटिलिटी किसकी है? इन्वेस्टर्स की. तो सबके लिए यूटिलिटी अलग है. ओनर के लिए मुझे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, मेरे असेट्स एंड लाइबिलिटीज कितने हैं. मैनेजमेंट के हिसाब से वो बोलते हैं हमको डिसीजन मेकिंग करने हैं, हमको कंट्रोल एक्टिविटीज करने हैं, हमको प्लानिंग करनी है. उसके लिए इन्वेस्टर बोलते हैं नहीं, हमको भी डिसीजन मेकिंग करना है क्योंकि वी आर इन्वेस्टिंग इन द कंपनी. चाहे बिजनेस करते हैं तो कस्टमर्स होते हैं. कस्टमर्स के लिए बुक कीपिंग का क्या रोल है? कस्टमर, सपोज आपका कोई क्रॉकरी का बिजनेस है, तो हाउ डू आई बाय द क्रॉकरी दिन? अच्छा, कोई मुझे बोलता है बहुत ही गुड, दे प्रोवाइड द वेरी फाइन प्रोडक्ट, दे प्रोवाइड द वेरी नाइस प्रोडक्ट. वो कभी फूटता नहीं है, वो जनरली कभी ऐसा गिर भी जाएगा धीरे से तो फूटेगा नहीं. और कभी कभी ऐसा होता है कि पैकिंग में ही फ्रेजाइल आइटम्स टूट के आते हैं. तो कस्टमर्स क्या करते हैं? कस्टमर के लिए क्या है इसका यूज? अंडरस्टैंड इजीली फाइनेंशियल पोजीशन, टू अंडरस्टैंड इजीली फाइनेंशियल पोजीशन. और दूसरा, ही कैन बी अश्योर्ड ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. उसको अश्योरेंस मिल जाता है, नो ये वाला जो भी प्रोडक्ट ये लोग प्रोवाइड करेंगे, दिस प्रोडक्ट विल बी एकदम परफेक्ट, इसमें कोई एकदम हम लोग विश्वास कर सकते हैं इन पर. तो दिस इज कॉल्ड एज अश्योर्ड फॉर द सप्लाई ऑफ द गुड्स. ये कस्टमर की यूटिलिटी है. नेक्स्ट कम्स योर गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की इसके लिए क्या यूटिलिटी है? गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएं? क्यों चाहती है? वाई गवर्नमेंट वांट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? ऊपर हमने देखा ना अभी, गवर्नमेंट क्या चार्जेस करती है? टैक्स. क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट कैन इजीली फाइंड
डिफरेंट टैक्स लाइबिलिटीज। हमने डिफरेंट टैक्स लाइबिलिटीज कौन सी पढ़ी थी? इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जीएसटी एक्सेट्रा। ये सारे टैक्सेस गवर्नमेंट को बराबर से कैलकुलेट करने आएंगे। नंबर 6, लेंडर्स। लेंडर्स कौन होते हैं? जो पैसा प्रोवाइड करते हैं बिजनेसेस को। लेंडर्स कौन कौन हो सकते हैं? बैंक हो सकती है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो फाइनेंस सपोर्ट देती है बिजनेसेस को, बड़े बड़े। तो ये लेंडर्स ऐसे ही पैसे दे देंगे क्या? सपोज सम पर्सन कम्स टू मी टुमारो एंड सेज वी रिक्वायर 10 लाख रुपीज, ऐसे ही हम लोग पैसा दे देते हैं क्या? नो, व्हाट वी डू, वी आस्क देम ये पैसा क्यों चाहिए, किस बिजनेस में चाहिए, आप कौन सा बिजनेस करते हैं। अच्छा, फिर मैं बोलूँगी कि ओके शो मी योर प्रॉफिट, शो मी योर बुक्स, शो मी दिस दैट इन्फॉर्मेशन, ये सब मैं पूछूंगी। तो लेंडर्स के लिए क्या है ये? उसको डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन टू लेंड मनी और नॉट। सपोज अगर उसने बराबर से अपना प्लान बताया ही नहीं तो कोई मनी लेंड करेगा क्या? नो, राइट अवे वो लोग बोल देंगे नहीं, वी कैन नॉट पे यू दिस अमाउंट बिकॉज आपका हमको जो प्लान है, जो बिजनेस का प्लान है, वी डोंट सी एनी प्रॉफिट इन दैट। और हमको क्या भरोसा उसका कि वापस पैसे मिल जाएंगे। बिजनेस अच्छा खासा चलता रहा तो हमको क्या हो जाएगा, वापस हमारे पैसे मिल जाएंगे। तो लेंडर्स के लिए क्या यूटिलिटी है? द डिसीजन मेकिंग टू लेंड द मनी और नॉट। और वो कैसे डिसाइड होगा? डिपेंडिंग अपॉन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब क्या? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर बहुत अच्छा है, प्रॉफिट बहुत अच्छा है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज, हमने बोला ना, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है तो असेट्स को खरीदना, बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो करना, इससे क्या होगा? बिजनेस का डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट के लिए इसकी यूटिलिटी क्या है? टू अचीव द business growth with help of accounting. So this is the utility of bookkeeping. Owner, management, investors, customers, government, lenders, development. ठीक है? ओनर के लिए P&L, मैनेजमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, फिर लेंडर्स के लिए डिसीजन मेकिंग टू इन्वेस्ट और नॉट, देन उसके बाद कस्टमर्स के लिए कि ये हमको कैसी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सेकेंडली गवर्नमेंट के लिए इसकी यूटिलिटी क्या है? टैक्स लाइबिलिटीज, ये इनकम टैक्स, जीएसटी एक्सेट्रा। तीसरा लेंडर्स। लेंडर्स मतलब कौन? जो पैसा देंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो या बैंक हो, ये लोग क्या बोलेंगे? आपका फाइनेंशियल पोजीशन, वो कहाँ से पता चलेगा? बुक कीपिंग से। एंड लास्टली डेवलपमेंट, ये बुक्स ऑफ अकाउंट से मैनेजमेंट को ही क्या डिसीजन में आसानी होगी कि बिजनेस को हमने और कितना आगे बढ़ाना चाहिए। हमने उधर लिखा है अचीव द बिजनेस ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलते हो? यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। ओनर के लिए टू फाइंड आउट P&L, असेट्स, लाइबिलिटीज ऑफ द एंटरप्राइज। मैनेजमेंट के लिए प्लान, टेक डिसीजंस, कंट्रोल ओवरऑल एक्टिविटीज। इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉपर डिसीजंस वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट, ये भी हमने पॉइंट देखा। देन कस्टमर के लिए इजीली अंडरस्टैंड, क्या इजीली अंडरस्टैंड? फाइनेंशियल पोजीशन। दूसरा, ही विल बी अश्योर्ड ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। ठीक है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए क्या होता है? इजीली फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस ड्यू फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। सोर्सेज क्या देखे हमने? इनकम टैक्स, जीएसटी, प्रॉपर्टी टैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेंडर्स। लेंडर्स के लिए क्या होता है कि वो फाइनेंशियल, ही कैन फाइंड द फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द एंटरप्राइज फॉर डिसीजन टू लेंड मनी और नॉट, पैसा दे या ना दे, क्योंकि लेंडर अगर पैसा देगा तो उसको वापस भी चाहिए उसके पैसे, दैट इज वाई दैट पॉइंट। एंड लास्ट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का क्या है? टू अचीव द बिजनेस ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। सो दिस इज इट। सो हमने आज ये सारी चीज़ें डिस्कस करी, मीनिंग एंड डेफिनेशन, उसके बाद फीचर्स, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग, देन इंपॉर्टेंस ऑफ द बुक कीपिंग और इसका यूटिलिटी ऑफ द बुक कीपिंग किसको किसको है, राइट? सो ऑल these points are discussed here. So this is covered in your basics of accounting only. That's it for today from my side, guys. Thank you so much. Bye bye. If you like this video, please subscribe and do not forget to hit the bell icon button. Thank you.